Okay, I think we should start. Four people are still joining in. Okay, guys. Good evening. My name is Nidhi Khanna, and I'll be taking your Eco One BCA. Uh, please don't. Again, I'm trying to tell you. Please don't drop your attendances like this. I'll be taking it on the attendance collector. अपने आप collect हो जाएगी. You don't need to drop your name and roll number. ठीक है? There's no need for that. Okay, guys, about the subject, let me tell you a bit about it. So, the name of the subject is Eco 1. Okay? भले ही Eco 1 फिर please don't drop your attendances. I'll take it automatically. Don't worry about it. Yeah, about the subject, guys. The name of the subject is Eco 1. Okay? Can you go? It's Eco 1, but what we will be doing is proper and hardcore business studies. Okay? Business studies, business management. That is like bits and pieces assortment of business studies, business management. ये सब पढ़ेंगे हम लोग. We are not going to delve into economics per se. Okay. Do we have any commerce students here? Commerce students won't be having like any problem with this subject because Yes, ma'am. Yes, ma'am. yeah, because it's primarily theoretical first of all. And Dipanshu has raised in hand. Yes, any questions you have? PCM related. It's absolutely no worries. Even if you are from non-commerce background, that is, you had science or arts. This is very basic, I would say. It's just that you'll be reading it for the first time, so you might come across why it's happening with us. But it's very basic subject, if I may say. But definitely, it would need your time and your attention. Dipanshu, do you have a question? Yeah, please, it will be better if you can change your names to whatever you have on the IGNU form या आपने जो भी भरा है. Because when we take attendance, like the Google Collector में जब attendance will take, तो वो नहीं तो आपका वो सरनेम वो जो like आपका यूजर नेम आ जाएगा. एंड किसी का अगर रॉकी 5 रॉकी 7 ऐसे कुछ है तो वो ही आएगा. So that means your attendance won't be of any use. So it is recommended you guys changing your name to the one that you have written on your IGNU form. Why are people joining in so late? Okay, I was downloading the extension. Just give me a second. Yeah, about the subject I was saying. So it is primarily your business studies and business management ka amalgamation. Economics nahi hai. It's not a technical subject at all. Although you may come across a couple of words that you may find technical, but very very general, if I may say. So कोई घबराने की जरूरत नहीं है. This is like I think one of the easiest subjects. What is happening? What is happening? Am I audible, guys? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, So ma'am. how we are going to do this? So I have PPTs, okay, but please don't base your studies on those PPTs. Those PPTs are for your revision purposes, for your help. Okay? You have to base your studies on the IGNU material. And if you have not got it, कोई problem नहीं है. नेट पे आराम से सब कुछ मिल जाएगा आपको. You can download the books from there. ठीक है. अगर नहीं है तो I will mail it to you. There is no problem about that. I'll mail the PPTs as well. Again उसकी कोई problem नहीं है. Problem है सिर्फ थोड़ा time देने की. ठीक है. So just be little bit patient with this subject, and it's all theory. No problem at all. ठीक है. All right. So I'll be doing it. I will be sharing
my screen with you guys, okay? And when I do it, it is recommended that you guys pin the screen presentation, not my cam, okay? Half the time students have no idea I'm sharing the screen and they have to pin the shared screen. Okay, so not don't pin my cam, pin the shared screen wala panel. Okay, you have to pin that. Okay, I'm going to give it a last try. Otherwise, later on I'll download it. I don't know. अभी तो download हो गया था. I don't know what's the problem. And yes, with your permission, I'll also be recording this session with you guys. Okay? So this will be available on online later on if you want to go ahead with it and revise. So for the people who are dropping their attendances again, it's of no use because I will be kind of using the attendance collector. So randomly it will be taking the attendances. It will be monitoring your arrival and your exit. So अगर आप सोच रहे हो कि अभी चलो अटेंडेंस देके हम निकल जाते हैं तो वो बाद में अगर हुआ तो अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी. Just to let you guys know. So if you say कि no we dropped the attendance and doesn't matter. ठीक है? Doesn't matter because when I'll click it and then only it will be taking the attendance. Okay? All right. Still people are joining in. What is the problem? Okay, guys, I'm starting the presentation. So pin your screens to that presentation and not my cam. Okay? Can you see my screen? नो मैम, प्रेजेंट नहीं हुआ वो। No. No, present. Okay. Okay. The problem is I have a MacBook, so I don't know why my Chrome is not letting it present. I have to go to the system preferences. Okay. Anyone having Mac? Why I'm having problem? Because I generally don't do this through Chrome. I do this through lots of problem. Okay. Just give me a second. I think we have to go with the old method of why it is not happening. Anyone can help me with this? I mean, I'm using a MacBook and I'm not able to share my screen with you guys. Why? Chrome might not have screen recording permission. And entire screen. I'll do one thing. I'll open it through Safari. Yeah, I don't use Chrome, so that is one of the problems because Safari में ऐसे कभी दिक्कत आई नहीं है. Maybe some permissions should be missing, ma'am. I don't know what is the problem. Sorry guys, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया. Can you just
Yeah, there is on Mac. It could be some permissions related issues. Yeah, yeah, yeah. And it's been a while. Like I don't remember using like Chrome and all that. So, yeah, can you see me guys? You are available in two windows, ma'am. I know, I yeah, yeah, yeah. I will close the Chrome one. Yeah, one. Yes, ma'am. Yeah. So let me stick to this only. Mm, and let me start the presentation. Yeah, you can see now. Yes, ma'am. Yes. Yes. Thank God. Okay, I'm going to start the recording as well. Voice not recording. Recording comes here only. Weird. Okay, I'll figure this out later. Let me just start the presentation. It's getting late anyway. So yeah, guys, how are we gonna do it? We are going to start with block one. Okay, that is your first block, and I won't be taking block two tomorrow. I'll straight away go to block three. Why I do this? Because block two is finance. All right. My voice is not clear. You might have any problem with your net or something because I'm No, No, even I'm getting a distorted voice. distorted voice. Okay, then let me just wear a microphone. Generally, I have been giving lectures on this laptop only, on my MacBook only, and I don't know why the recording feature is not showing up. Am I clear now? Yes, ma'am. Generally, these things doesn't happen. Yeah. So as I was saying, we're gonna start with the block one, that is your B1, okay? And straight away from here, we'll be going to B3 and B4 and B5. After that, we'll come back to finance. Why I do this? Because whatever we are going to do today, B3 and B4 are more connected to that. Okay, doesn't make sense me to give you a brief introduction about what we are going to do in this subject, क्या क्या करने वाले हैं, and then straight away go to finance. Finance can be a little bit technical, but nothing like need to be worrying about because it's then again very general. Okay, so B1 and then B3, then B4, then B5, and then B2. Okay, and of course I'll be sharing this with you. One of you can share the this your email IDs and things with me, and I can mail it to you, and then you can share it on your this, or I can make a zip file on WeTransfer. I think it's WeTransfer. Okay, so let us start with block one. Uh, so guys, as I said, economics one, eco one that we are doing, economics वाला कुछ भी नहीं है इसमें. It's all business studies and business management amalgamation assortment. ठीक है. First of all, let us know what business is. And इससे भी पहले, let me just tell you a brief bifurcation of activities. So whenever we talk about activities, we bifurcate it in two parts: human activity and non-human activity. ठीक है? उसका क्या मतलब है कि human activity होती है done by humans and non-human होगी जो कि animals करते हैं. We are not concerned with that. Human activity में भी दो आती हैं, that is economic and non-economic activities. When we talk about economic activities, uh, you are primarily concerned with money. ठीक है? You are earning your livelihood, जिससे आपका घर का खर्चा पानी चलता है. Guys, remember this thing as well. ये since theoretical subject है,
ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट. थोड़ा मोनोटनस लग सकता है बट दैट डजंट मीन कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है. आई एम प्रीटी श्योर अभी तक किसी ने पढ़ के नहीं रखा होगा. एंड जनरली दीज सेशंस आर फॉर योर डाउट क्लियरिंग, बट ठीक है, कोई ऐसे पढ़ के नहीं रखता है. तो व्हाट आई डू इज दैट आई जस्ट समराइज द होल थिंग एंड आई ट्राई टू कवर एवरी पार्ट. ठीक है, so if you don't understand anything you can ask me there and again. Yeah, as I was saying, human activities दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. एंड स्पीड भी थोड़ी गाइस तेज रहेगी, तो यू कैन लाइक बिकॉज इट्स लॉट टू कवर. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आप पैसा कमाते हो सिंपल शब्दों में. नॉन इकोनॉमिक्स के थ्रू आप लव एंड अफेक्शन, पेट्रियोटिज्म, सोसाइटी के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए करते हो. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैं एग्जांपल अगर दूं, टीचर अगर घर में पढ़ाती है अपने बच्चों को, दैट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज शी इज डूइंग इट फॉर लव एंड अफेक्शन, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, एंड शी वोंट बी चार्जिंग देम मनी. Whereas a teacher, if teaches in a school or an institution, that there she will be or he will be getting salary. वहां पैसा मिल रहा होगा वहां पर. So that is your economic activity. इसको हम तीन में बांटते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इट्स वन ऑफ अ वेरी स्टेपल क्वेश्चंस दैट वी गेट दिस एग्जाम में. एंड इन तीनों को ही आपको टेबल फॉर्म में लिखना होता है. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर लेमन टर्म्स में बात करूँ आपको, तो तीनों सेम ही चीज है, सब में पैसा कमाया जा रहा है. बट देन अगेन थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस इन तीनों चीजों में होता है. आई होप दिस इज क्लियर. कमिंग बैक टू बिजनेस, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद बिजनेस, हम लोग अभी बिजनेस को देखते क्या होता है, एंड देन वील बैक थोड़ा ब्रीफ में वील डिस्कस कि प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा होता है. राइट? सो एज आई सेड, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम कंसर्न ही नहीं है. सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर आप परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन and or exchange of goods and services. What kind of goods and services? The services that have bond satisfying power. ठीक है, bond satisfying power. जो आप चीज क्या खरीदते हो, जो आपको चाहिए, आप किस चीज पे लिखना है. अगर मैं बोलूँ कि लिखो, और आपके पास अगर पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कैसे लिखोगे? प्रॉब्लम है ना. तो यू हैव अ वांट. व्हाट इज द वांट? कि भैया मेरे पास एक पेंसिल हो या पेन हो जिससे कि मैं लिख पाऊँ. So business does that. Business creates such products which are of our use and sells it to us. Okay? So primarily it's an economic activity. There's production of goods and services, sale and exchange of goods and services with the want satisfaction power. This goods में होती है. You have to deal in regularity. एक बार आपने अपने घर के अंदर आपको चीजें नहीं चाहिए, सोफा आपका पुराना हो गया, आपने बेच दिया. That doesn't constitute business. There has to be a regularity. You need to be regularly doing that activity on a continuous basis. आपने एक बार की does not qualify as business. ठीक है? So मैम deal. सॉरी फॉर Yeah. सॉरी फॉर इंटरप्ट. मैम फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या पीपीटी? ठीक है अभी, यस और मैम. आएगा, इतना ही आ रहा है वो. थैंक यू मैम. ठीक है. Okay. Yeah. So there has to be regularity in dealing of goods and services continuous में. जैसे आपका एक शॉप खोल लिया, वो आप सालों भर चला रहे हो. अर्निंग प्रॉफिट. आपने बिजनेस खोला क्यों? यू वांट टू अर्न मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी. यू वांट टू अर्न मनी, योर मींस ऑफ लिवलीहुड, जिससे कि आपका खाना पीना सब कुछ चलेगा. राइट? सो प्रॉफिट अर्निंग इज द कोर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क. ये हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ेंगे आगे जाके, बट लेट मी टेल यू, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में क्या हो रहा होता है. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. ऑल्दो risk is something that is pervasive in all business activities. मतलब क्या है कि बिजनेस का इनहेरेंट फीचर है रिस्क. व्हाट इज रिस्क? अनसर्टेनिटी, कि कल को क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा. So you have to have that risk taker, go getter kind of an aura of a this attitude to do business. अब जब स्टीव जॉब ने आपका आईफोन लॉन्च किया था, नो वन हैड इवन थॉट कि टच करके ऐसा कुछ आएगा चीज. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर इट, और आप लोग बहुत छोटे थे, because I was in college that time and I was using Nokia that time. And जब iPhone का फर्स्ट जनरेशन फोन आया था, तो honestly my friend used to, like, my friend got it and वो कॉलेज में लेके आई थी, and वो लिटरली ऐसे
पिंच करके जूम करती थी और ऐसे करती थी, हम कहते थे तो क्या कमाल, मतलब मैजिक. So this was something unheard of, and this technology came for the first time. Everyone was like, "Wow!" And when Steve Jobs was making it, he would have so many questions. Will people be able to afford it? Will they want it? Will they like it? Because Nokia was a very big player that time. नोकिया के फोन वो दिखाते हैं ना कि हैमर की जगह पे नोकिया का फोन है और उससे कील ठोक रहे हैं लोग. Because they were that sturdy, the battery life was so good. And jumping from such a major player to complete shift of the market, it was unheard of. So this was the risk part that Steve Jobs took, and he was like, okay, no, 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 let me do it. This is innovation, this is something new, right? So element of risk will always be there in business. Kal ko chalega nahi chalega pata nahi, right? So when you get a question on business and nature of business, so you have to write this. These points that we dealt with right now, these are nature of business, नॉट ऑब्जेक्टिव्स. प्लीज नोट दैट कि क्वेश्चन में जो पूछते हैं वो लिखना होता है, ये नहीं कि जो आता लिख के आ गए. नेचर ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट, जो मैंने अभी बताया आपको. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो बी वेरी ऑफ वट यू आर राइटिंग इन एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. पहले पढ़ो क्वेश्चन को एंड देन राइट इट. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आ रहे हैं आपने मेरी सारी साड़ियां बेच दी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. नहीं नहीं नहीं, घर की साड़ियां थोड़ी आप बेच लोगे, बिजनेस थोड़ी है वो. बिजनेस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, जो कि रेगुलर हो रहा है. साड़ियां तो एक बार बेच के क्या क्या करोगे फिर आप, ठीक है. सिमिलरली नॉन इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक का, ठीक है गाइस, यू कैन रीड द डिफरेंस, इज प्रीटी सिंपल. कुछ ऐसा नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने वाला. अगेन दैट एग्जांपल वेयर मदर इज टीचिंग हाउ 10% there. All right. So the difference that we were talking about, the comparison between business, profession and employment. Business मैंने बता दिया आपको. Profession, employment, maybe you are doing something or the other where there is an exchange of goods and services happening. Okay, where you are giving something and getting something in return. You're giving your skills, your time, your expertise, and in return you are getting something of valuable, like your remuneration, your salaries, like that. So one difference is कि business में you have a lot of risk because you don't know if it will work or not. But profession में क्या रहेगा कि आपने अगर let me tell you what profession is first of all. First of all, profession is something that you have to become after getting some kind of knowledge. Like lawyer हो गया आपका, doctor हो गया, CA हो गया. So these people have to first of all study the relevant thing. While business can be done by anyone, business के लिए you don't need any preliminary knowledge और पहले से कुछ पढ़ के रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल ही लाइक फिफ्थ पास हो, सिक्स पास हो, जो भी पास हो, एंड यू वांट टू डू बिजनेस, यू कैन. ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं होती, वेयर प्रोफेशन में होती है. सो इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर यू हैव टू डू LLB. In order to become a doctor, you have to do this medicine की जो studies होती हैं and all that. You have to become this MD and all that. तो जाके आप डॉक्टर बनते हो. Similarly, CA कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए you have to be study that thing and you have to be registered in that body. Like जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, अगर आप लॉयर हो तो you need to give that exam, need to pass it, you need to get that code number. So you need to be affiliated to these institutions. That's how you become a professional. Professional and employment में क्या फर्क हो गया? Employment में हो गया कि you just need to meet certain criteria. अगर एक job requirement है and that job requirement is you need to be a graduate. So अगर आपने कोई भी graduation कर रखी है relevant field में, तो you become eligible to be employed, right? So employer इसमें क्या होता है, business में you don't need that much of knowledge. Of course, business चलेगा नहीं अगर आपको उस business के ins and outs नहीं पता, right? But then it is not a prerequisite to start a business. Profession में भी सेम चीज होती है. सॉरी, प्रोफेशन में बट आपको एक्सपर्टीज चाहिए होगी, एक कोड ऑफ कंडक्ट आपका जो होगा, आपका जो नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होगा, दैट हैज टू बी देयर. आपके पास वो रेलेवेंट डिग्री होनी जरूरी है. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट में यू जस्ट नीड टू मीट द क्राइटेरिया. प्रोफेशन में यू गेट व्हाट? यू गेट फी. डॉक्टर ये नहीं कहता मेरी सैलरी निकालो, अनटिल अनलेस वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर है. डिफरेंस है इस चीज में भी. इफ द डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग इन प्राइवेट, जैसे वो प्राइवेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, अगर उसकी प्राइवेट की प्रैक्टिस है
he'll say, this is my fee. The lawyer will say, this is my fee. Okay. Whereas if a doctor, CA, or a lawyer is employed in an organization, तब उसको salary मिलेगी. Okay. So the what you get profit in business, profession में fee मिलती है आपको, and employment में आपको क्या मिलता है? Employment में आपको salary मिलती है. ठीक है. कैपिटल की अगर मैं बात करूं, कैपिटल क्या मतलब होता है कि द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. ठीक है. सो बिजनेस के अंदर कैपिटल रिलेटिवली ज्यादा चाहिए होता है. प्रोफेशन में अगर आपके पास एक कमरा है और आपने अपना एक सेटअप करके रखा हुआ है तो वो काफी है. Still you need some capital over here because अगर आपके पास जगह नहीं है तो you need to take on rent, you need to get the furniture, you need to get the interiors done. So comparatively profession में the capital required is lesser than business. Business में maximum चाहिए होता है because सारा ही आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, and you need to do it from scratch, and the setup is generally bigger. अब you can say अरे नहीं प्रोफेशन अगर हम है तो एक तरह से बिजनेस ही तो हो गया हो. In a way yes, बट उसकी जो अंडरलाइन क्या बोलते हैं पॉइंट्स हो जाएंगे, अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी, वो डिफर कर जाएंगे. यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ. आपको इतना ही पता चाहिए होना काफी है कि बिजनेस में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है. एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस कंपैरिजन के अंदर यू कैन राइट इन अ पैराग्राफ और टू, you can explain it in your own words, although these are different in these regards, but generally they overlap. A professional can be doing a business and a professional can be employed in a company. Okay, like that you can explain. Employment के अंदर there is a contract between two parties, employer and employee. Employer and employee के बीच में contract बन जाता है. There is a relationship between them, and that relationship is called employment. Okay, so nothing very technical over here, just minute differences कि इन तीनों में फर्क क्या होता है. And if we talk about, we are only concerned with business. ठीक है, ये एक staple question है कि business profession employment के अंदर आपको difference आ जाता है. Okay, but आगे हम सिर्फ business की बात करेंगे, professional employment को पूछेंगे. Okay, this is your difference. You can go through it. Very simple. No, nothing technical over here. Coming back to business, अभी जो हमने points ऊपर deal किए थे, those were nature of business. Again, I'm telling you guys, whenever you're doing your assignments or whenever you are attempting questions in your exams, please be careful about what the question is asking. क्योंकि इतनी बार होता है कि ऑब्जेक्टिव्स पूछे होते हैं, बच्चे सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस लिख के आ जाते हैं, वाइस वर्सा. सो बी केयरफुल. व्हेन आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि जब आप पढ़ते हो ना तो ये भी पढ़ो कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है. ये कोई नहीं पढ़ता. सब पढ़ लेंगे, अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट ये कोई समझेगा नहीं, कोई याद नहीं रखेगा अपने माइंड में कि ये पॉइंट्स नेचर के हैं, ये पॉइंट्स आपके उसके हैं ऑब्जेक्टिव्स के. ठीक है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हम दो तीन तरीके के इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. वन इज योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, वन इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगेन पैसे की बात करेगा, आपके इसकी बात करेगा जिससे कि आपकी कंपनी को इकोनॉमिक फायदा हो, आपके बिजनेस को इकोनॉमिक फायदा हो. सो पहला तो ऑब्जेक्टिव हमारा है ही अर्निंग प्रॉफिट्स, बिल्कुल डाउट ही नहीं है जी, हम तो काम ही इसके लिए कर रहे हैं. इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जितना आप इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट निकल के आ रहा है, यू नीड टू इंक्रीज दैट ओवर टाइम. ठीक है. मार्केट स्टैंडिंग, जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, इफ आई टॉक अबाउट से बिट्टू टिक्की वाला या ओम स्वीट्स हमारे यहाँ पर, बीकानेर वाला, these people started with a very small scale, रेडी वेडी लगा के खड़े होते थे. ठीक है. and over time they took a shop. over time they made a two three different type of cuisines start करी, and you see they are all over India right now. ठीक है. सो मार्केट स्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ाई जाती है. यू इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है भैया, एकदम से आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस एंड यू आर एट द हाई एंड स्टफ एंड एकदम से मार्केट प्रेजेंस दिख गई. बट ये जनरली नहीं होता. यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड यू गो one step at the time. ठीक है. तो मार्केट स्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी होती है. अगर आपके लोगों को पीपल डोंट नो अबाउट योर बिजनेस, who is going to come to you? No one is going to come to you. So one of the economic objectives is to have good market standing. Innovation, कुछ नया,
कुछ ऐसा करो कि जिसने कभी पहले नहीं किया, जैसे मैं वाज गिविंग स्टीव जॉब्स एग्जांपल, ठीक है। तो दिस पर्सन स्टार्टेड एकदम से ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज इसने देनी शुरू कर दी कि पीपल वर कंप्लीटली ब्लोन अवे। स्मार्टफोन्स, टच फोन्स एकदम से मार्केट में आए, पहले बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। सो अगेन, हर बिजनेस में इनोवेशन नहीं होता। आप बोलोगे अरे ये जो ग्रोसरी वाला है ये क्या इनोवेशन कर रहा है, ये भी अपने लेवल पे इनोवेशन कर सकते हैं। हाउ? दे कैन कम अप विद स्कीम्स, डिस्काउंटिंग स्कीम्स, कि अगर आप ज्यादा लोगे, आपने देखा अमेजोन पे अभी, नोट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस, अमेजोन पे दीज डेज नीचे ना सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब करो। मतलब क्या है? इट्स अ न्यू फीचर दैट अमेजोन केम अप विद। अगर आप एक प्रोडक्ट या ग्रोसरी आइटम रेगुलरली खरीद रहे हो, तो यू डू वन थिंग, यू सब्सक्राइब टू इट एंड यू गेट अ चीपर रेट। So these type of innovations keep on coming in businesses, ठीक है। न्यू फीचर्स इसको हम बोलते हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ये ऑप्टिमली यूटिलाइज करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय सबसे पहले आएगा, ठीक है। जो हमें चाहिए, देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, वो गैप को कम करने के लिए बिजनेस आ जाता है कि इट इज आर moral duty to get the person whatever he wants, the want satisfying goods and services, we need to provide it to them। अच्छा, एंटी सोशल अनफेयर मैल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाई businesses have this CSR in it। Even if you go to your local shop, आप बोलोगे ये पैकेट ठीक नहीं है, वो वापस कर लेता है। It gives you an exchange, ये एक्सपायर्ड है, वो आपको वापस करके न्यू प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज, टाइम एंड अगेन आपके वेलफेयर के लिए आपको सैंपल्स देना या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जाके चीजें करना। अगेन गाइस, ये कम्युनिटी सर्विस जो होती है, अगेन ये हर बिजनेसमैन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि स्केल कभी कभी बिजनेस का इतना छोटा होता है, वो खुद को देखेगा या क्या करेगा। बट देन अगेन वी आर नॉट कंसर्न विद इट, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ ये क्वेश्चन है ना, ये मुझे बच्चों ने बहुत बार पूछे हैं। लाइक कुछ नहीं, मेन चीज नहीं पढ़नी है, नहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं। अरे करने को हजार चीज कर सकते हैं, ठीक है। As I say always, you just need to focus on these points, explain them, and that's it, ठीक है। Generation of employment, again yes, one of the very big features of business is to generate employment, ताकि कोई बेरोजगार ना रहे, because if anyone is unemployed, उल्टे कामों में ही दिमाग लगता है। It can lead to increase in crime rate as well, ठीक है। एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, आपको अपने एम्प्लॉइज को थकाना नहीं है। आजकल कंपनीज में देयर आर एन नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स गिवन, देयर इज मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है आजकल एम्प्लॉइज की। टाइम एंड अगेन दे मेक देम एक्सरसाइज, ठीक है। सो दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। रोल ऑफ प्रॉफिट, अगेन गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, objectives of business, comparison between business employment and profession, they all separate questions, ठीक है। and role of profit in business is another question। See, you can merge these parts depending upon the question as well, right? Just why I'm mentioning this again and again, because this is very important। I don't know कितने लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं, but this is very important कि आपको पता हो कि इसमें किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। because when I check assignments, मुझे ऐसा लगता है कि बस यू नो कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दिया है। आधे लोगों ने तो समझा भी नहीं है कि पूछा क्या जा रहा है। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, जस्ट थोड़ी सी और करके ये जानना कि किसने क्या लिखना है। अब ये बात कर रहा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि प्रॉफिट जरूरी बिजनेस में क्यों है। पहली चीज सबसे आंख बंद करके आपको लिखनी है, इट्स अ मींस ऑफ लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ इनकम, राइट। यू आर डूइंग बिजनेस, आप इतना पैसा खर्च के एक सेटअप बना रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू डील विद these goods and services, so you need to get something in return, right? हर चीज का एक क्या बोलते हैं, आदान प्रदान जिसको हिंदी में बोलते हैं, होता है। तो सोर्स ऑफ इनकम इज द वन ऑफ द मेन फीचर्स कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। सो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज योर इनकम, राइट। एंड जो ये प्रॉफिट आता है, ये आप आगे भी प्रॉफिट में लगाते हो, बिजनेस में लगाते हो, विच इज नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट। हम जब फाइनेंस पढ़ेंगे ना, तो ये रिटेन प्रॉफिट्स आएगा वापस, ठीक है। रिटेन प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि जो आपने पैसे कमाए वो बिजनेस में लगा दी। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु डू बिजनेस, जैसे कि वी हेट टू गो एंड कीप आवर मनी इन द बैंक,
वो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, ठीक है, बट वी रादर वुड टेक दैट मनी, इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस इटसेल्फ सो दैट वी गेट मोर रिटर्न्स। बैंक वालों के रिटर्न्स क्या है आजकल? कुछ भी नहीं है। एफडी पे इतना कम रिटर्न है, सेविंग्स पे इतना कम रिटर्न है, मिलता ही नहीं है रिटर्न। इंश्योरेंस तो भगवान के नाम पे कभी बहुत बहुत ध्यान से कराना, इट हैज हैपन विद मी और मैं भुगत चुकी हूँ कि कितना पागल बनाते हैं बैंक वाले ये। यू वोंट नो कि बैंक वालों को जान के बताया जाता है कि आप पागल बना लोगों को। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस, प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट lakhs of rupees because of it, and बस आई थिंक गॉड्स ग्रेस कि बच गए, पैसे निकाल के ले आए, बिकॉज थोड़ी लॉ की नॉलेज है मुझे। डोंट साइन एनीवेयर, ask for a proper copy of your this question. Okay. Yes, Amardeep, you have a question? No, actually, I have not question on. I want to share my opinion with you. मैम you are actually जैसा कि आप बोली कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में प्रॉब्लम रहता है, जैसे Yeah. कि मैम उसके जगह मैं बोलना चाहूँगा कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमें अगर हम वो कहें कि तो हमारा पर्सनल, कल्चर जैसे कि अगर मैम that एक is a personal ओपिनियन है thing. मतलब मेरा। I'm यस I'm yes, मैम, absolutely, absolutely, you can do it, but मैम I'm इसलिए saying मैम this मैम because मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। मेरे को यस इतने अच्छे से बैंक वाले स्टेप बाय स्टेप, क्या बोलूंगी मैं, लेमन शब्द पे पागल बना के जाते हैं। यस they मैम, told हाँ me बिल्कुल they बिल्कुल told me the बताते हैं बिल्कुल। proposal will come, मेरे साइन ले लिए, यस मैम, वीडियो बनवा ली कि yes I agree to terms and conditions, and यस मैम। this is actually a banking fraud going in the country right now, so be very एक्चुअली वो careful लोग about it. एक्चुअली उन लोग का मैम जैसे कि वो लोग पैसे लेते हैं और वो उसे लोन कर देते हैं, ठीक है मैम। उन्हें लोन करने के लिए पैसा चाहिए ताकि वो लोग सामने से इंटरेस्ट ले सके, तो मैम उनका मेन मोटिव ये रहता है कि कैसे भी इस बैंक में पैसे लेके आओ ताकि हम सामने वाले को लोन करें और उससे I am इंटरेस्ट लें, क्योंकि I am इसको मैम। talking about bank employees. I'm not talking about insurance agents. I'm talking अच्छा about अच्छा this अच्छा, is यस मैम। happening in banks. ओ ठीक है, तो यस प्रपोजल मैम, साइन करवाया मुझसे, एंड यस दे मैम, सेड कि आपकी पॉलिसी घर में आएगी, दिस रिटर्न कॉपी हैंड आएगी घर में, हम आके समझाएंगे। कोई समझाने नहीं आया, कोई कॉपी नहीं आई, प्रपोजल को ही मेरा पॉलिसी मान ली। दे वर नॉट गिविंग मी एनीथिंग, लाइक बस जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दैट। यस मैम। ओके, गोइंग बैक, okay, I need to charge it. Yeah, so ग्रोथ बिजनेस का है, तो जैसे कि हम लोग जो पैसा मिल रहा है हमें, वी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इफ यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग 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 एंड यू आर गेटिंग लॉसेस, so that simply means you are not doing it right or you are not doing enough. Okay, so index of performance मतलब एक measure कर सकते हो आप कि if a business is earning profits, that is doing good. Okay, so that is a measurement, how you measure it, you measure it through profits. Profit ज्यादा हो रहे हैं, business अच्छा चल रहा है। Profits नहीं हो रहे, business को बंद कर दो, खत्म कर दो। It is a reward for risk taking. I told you guys कि it's one of the inherent features of business कि you need to take risks. So when you take risk, you get return. एक हम लोग इसका ट्रेड ऑफ पढ़ाते हैं, रिस्क एंड रिटर्न का। more risk you take, more risk you return you get. That is a direct relationship between risk and return. जितना रिस्क लोगे उतना फायदा होगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, सो प्रॉफिट का मतलब क्या है, रोल क्या है कि इट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ओके, ऑलराइट, आगे हम जाके बिजनेस को दो एक्टिविटीज में बाइफरकेट करते हैं, दैट इज योर इंडस्ट्री एंड योर कॉमर्स। ऑलराइट, अगेन हम लोग कॉमर्स से ज्यादा बात करेंगे, इंडस्ट्री को सिर्फ एक बार जान के छोड़ देंगे। We won't delve into it much, we'll delve more into commerce. अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब है कि व्हेन यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आपने सारे रॉ मटेरियल्स को लिया, वो कुछ उस पर काम करा थोड़ा बहुत, एंड उसको आगे कस्टमर को बेच दिया, या फिर उस आधे अधूरे प्रोडक्ट को थोड़ा और ठीक करके आगे बेच दिया। ओके, सो इंडस्ट्री के दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक आता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज या नॉर्मल सर्विसेज हैपनिंग, और उसका क्लस्टर, लाइक वी से फिल्म इंडस्ट्री।
फिल्म इंडस्ट्री जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? फिल्म इंडस्ट्री का मतलब होता है कि all the activities related to generation of production, marketing or whatever of films, content, that is the film industry. ठीक है? If you talk about say automobile industry में सारे vehicles आ जाएंगे. Okay, so that is cluster of similar type of companies doing similar kind of functions. That is industry. But when we talk about industry as a business activity, we are concerned with conversion of goods into consumable goods. Sorry, raw materials into consumable goods. जहाँ हम उसको consume कर सकते हैं. Now the customer can be industry, a company as well, and the customer can be consumer as well. हमारी तरह. कंज्यूमर दो तरीके के होते हैं. हम आगे जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि दो तरीके की गुड्स होते हैं. इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं और एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं. Although there is n number of bifurcations, but we are not concerned with n number of bifurcations. एक दो bifurcation पता हो काफी. Okay, so business activity क्या होती है? It's an economic activity. उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? There is regular production, procurement, assembly, exchange of goods and services which have bond satisfying power, जिससे कि हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम दूर हो रही होती है. ओके, वी आर अर्निंग प्रॉफिट, वी आर टेकिंग रिस्क एंड वी आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऑलराइट, इस एक्टिविटी के अंदर दो चीजें करते हैं हम. एक इंडस्ट्री होती है, एक कॉमर्स होता है. इंडस्ट्री में वेयर वी आर टेकिंग द रॉ मटेरियल्स एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू समथिंग दैट इज यूजफुल. एंड कॉमर्स क्या करता है? वो गुड आपने बना के रख दिया है, वो चीज आपने बना के रख दी है, पड़ी हुई है, क्या फायदा? You need to now do certain activities through which the exchange actually takes place. एक हाथ से दूसरे हाथ में. Guys, give me a second. Let me put my laptop on charge. Yes, you can ask me whatever you want to ask. I was studying that thing. Your battery is getting low. Hello, am I audible? यस Yes, मैम. ma'am. Yeah, man, you're Oh, audible. yeah. Tell me. क्या पूछ रहे हो? बोलो. मैम वही बोल रहे थे वो कि बैटरी आपकी लो हो गई है, हाँ, मैं वही जरा बोलना था. right. ठीक है, एक second. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, actually, I wanted to ask a question. Actually, the submission date for our assignments is 30th April, but in many sites, notification is given that it has been extended till 15th 15th May. of May. Yes. So, Yeah. can you please exactly say what is the, because we have been confused a lot because of the date. See, all this information na, is available on this RC. Okay. Check. Okay. Thank you. Okay. इसके वो आए होते because last I saw, because I am also doing a certificate course from IGNU and so it got extended. But see guys, Yes, ma'am. it's not कोई ऐसे ना है. जनरली स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, हम तो अभी एडमिशन लिया है, ये क्या हो गया. Yes, इट्स ऑल that's the गुड, कोई thing. प्रॉब्लम वाली Yes. बात नहीं होती है. हाँ, Okay. कोई प्रॉब्लम Thank वाली you. बात नहीं होती. अभी अपेयर या अभी अपेयर ना होके आप बाद में अपेयर हो सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके, कमिंग बैक. या ठीक है. कॉमर्स की बात हम कर रहे थे, आपने सामान बना के रख लिया. गाइस अपने माइक्स म्यूट कर दो प्लीज. या सो बिजनेस एक्टिविटीज को हम बाइफरकेट दो चीजों में करते हैं. जब बार बार ऐसे पूछोगे ना तो मुझे स्क्रीन छोटी करनी पड़ती है अपनी. इज देयर एनी क्वेश्चन? Some students are outside. You can give it through this ऑनलाइन मोड. तो प्रॉब्लम नहीं है, दो मोड के पेपर आप असाइनमेंट्स दे सकते हो ऑफलाइन. आप इंडक्शंस नहीं करते हो लाइक ज्वाइन, इसमें सब कुछ क्लियर होता है. ओके, सो एक ही इंडक्शन हुई है ना अभी तक. आई गेस सो, एक ही हुई है. Yes, Are ma'am. are एक you not starting में are हुई you थी. not in touch with your course coordinator? What? Your voice is Are breaking. you
ओके ओके, तो उन्होंने, या, so did you talk to them about this? Online. See, the best part about IGNOU is that it's very flexible, very accommodating. आप पूरी इंडिया में बैठ के कहीं भी एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें. सो पैनिक मत हुआ करो, जस्ट आस्क द कंसर्न पर्सन, दैट्स इट. अपने आरती जाओ, बात करो वहां पर, लेट्स क्लैरिफाई एवरीथिंग. ओके, या, सो वी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री में सामान बनता है, आपने कुछ चीज क्रिएट की, बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करके रख दी है. बट नाउ दिस गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे आपने इतना पैसा, कहते हैं ना, खून पसीना लगाया है, और अब तब तक वो कस्टमर के पास नहीं जाएगा तो आपका फायदा क्या है? देयर इज नो पॉइंट. सो नाउ द कॉमर्स थिंग कम्स इन पिक्चर. सो कॉमर्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, दैट इज ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, या ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रेड होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक हाथ से दूसरे हाथ में सामान जाना. दैट इज योर फैसिलिटेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंडस्ट्री ने गुड बनाया, इंडस्ट्री ने सामान बनाया, उस सामान को आगे बेचना. ओनर से कस्टमर के पास जब सामान जाता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जब सामान जाता है, दैट इज कॉमर्स. ठीक है, सो उसमें दो चीजें होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. एंड इंडस्ट्री में 2 मिनट में आती हूँ अभी, पर मुझे पहले ये समझाने दो. हाँ, ठीक है. कॉमर्स में दो चीजें पढ़ते हैं हम, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या एड टू ट्रेड. ट्रेड में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज हैपनिंग. ऑफ कोर्स आई गेट प्रॉफिट. एंड ऑक्सिलरीज वो होती हैं जो इसकी हेल्प करती हैं. मैं बताऊंगी अभी कैसे हेल्प करती हैं. 5 होती है ऑक्सिलरीज आपकी: ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. 5 होते हैं. ये सारे की सारी चीजें मिलके ट्रेड को हेल्प करती हैं, और इन दोनों को मिला के कॉमर्स करता है. ओके, कमिंग बैक टू योर इंडस्ट्री, इसको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है. इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज कन्वर्जन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू वांट सेटिस्फाइंग पावर, रॉ मटेरियल इनटू वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. इंडस्ट्री में 3 चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं दैट इज कंसर्न विद एग्रीकल्चर, where you are using earth and its resources, natural resources जहां हम यूज करते हैं, that is your primary industry. जहां या तो आप जमीन से कुछ निकाल रहे हो, या उस पर कुछ बो रहे हो, कुछ डाल रहे हो, कुछ ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर. सो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, दैट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री. जहां पर हम लोग बात करेंगे किसी चीज को रिफाइन करने के लिए, या प्रोसेस करने के लिए, या बनाने के लिए, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा. योर मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगी. एंड टर्शरी प्राइमरली डिस्कसेस विद सर्विसेज. तो जितनी हम ये सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, योर डॉक्टर्स हो गए, जहाँ सलॉन्स हो गए, ये सब सर्विस दे रहे हैं आपको, इनका प्रोडक्ट सर्विस है. बैंकिंग इज अ सर्विस, ठीक है, दे आर गिविंग यू सर्विसेज, सो वो टर्शरी में आ जाता है. ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है, एक्सट्रैक्शन या जेनेटिक. एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना या डालना, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग. जेनेटिक्स में यू आर रिप्रोड्यूसिंग इट. ठीक है, जैसे ब्रीडिंग करते हैं, जैसे एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल्स की वूल से हम शीप वूल से शीप करिए, शीप से हम वूल लेते हैं. ठीक है, हम लोग पानी में से क्या कर रहे हैं, फिश को निकाल रहे हैं. सो 2 चीजें कर रहे होते हो आप प्राइमरी इंडस्ट्री में, या आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, रिप्रोड्यूस करा रहे होते हो, या कुछ वापस उसमें डाल के ग्रो कर रहे हो, जो प्लांट्स हमारे होते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आ जाती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 4 तरीके की हैं: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड योर असेंबलिंग. एनालिटिकल में आप कुछ ऐसा निकालते हो ग्राउंड से जो चीज आपको सेपरेट करनी पड़ती है, लाइक योर ऑयल. सिंथेटिक में आप 2 या 3 मटेरियल को जोड़ के कुछ बनाते हो, नायलॉन, रेयॉन, ये सब जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. प्रोसेसिंग में आपको एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से करना, छान 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 के एक प्रोडक्ट तक पहुंचते हो आप, रिफाइन कर करके पहुंचते हो आप. असेंबलिंग में, जैसे कि गाड़ी के अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूं,
10 जगह से प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके पार्ट्स आएंगे एक आपका उसमें प्लांट के अंदर, वो सारे प्रोडक्ट्स पार्ट्स को जोड़ा जाएगा और असेंबल कर दिया जाएगा। सिमिलरली आपके कंप्यूटर्स में भी ऐसा होता है, आपके फोन्स में भी ऐसा होता है, लिखा होता है ना वहां पर। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली असेंबलिंग करते हैं हम लोग कि डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, ऐसी चीजें लिखी होती है ना। तो वो मतलब यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप जगह से आपके प्रोडक्ट्स आए और हमने कहीं और असेंबल करा। सिंपल कॉस्ट फैक्टर होता है, सस्ता पड़ता है इसलिए करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आपके बिल्ड, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये सब बनता है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगेन गाइस देखो, सब चीजों में कुछ ना कुछ हम बना रहे हैं। ओके, दैट इज इंडस्ट्री। कॉमर्स में मैंने बता दिया आपको, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि जो गुड्स हम इंडस्ट्री ने बनाए हैं, कॉमर्स वो बेचेगा। ठीक है, जो गुड्स इंडस्ट्री ने बनाए हैं, कॉमर्स वो बेचेगा। और कॉमर्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जी, क्वेश्चन है किसी का? टाइप ऑफ ट्रेड्स। अब गाइस, अब हम जो चीजें पढ़ेंगे ना, ये पूरी पूरी यूनिट्स। मैंने क्यों बोला कि हम लोग पहले B1 करेंगे, ब्लॉक 1 करेंगे एंड देन ब्लॉक 3 करेंगे, बिकॉज इसके बाद स्ट्रेट अवे ये सारा जितना भी है ना, ये आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपका ये एडवर्टाइजिंग, B2 B3 में यही है। सॉरी, B3 B4 में। B2 इज फाइनेंस, तो वो सबसे एंड में पढ़ते हैं। मैं आई डोंट टेक इट एकदम से, आई टेक इट एट द लास्ट। ठीक है, बिकॉज हम लोग सिमिलर चीजें पहले पढ़ ले, वो बेटर है। क्यों पहले कुछ और करो फिर कुछ और करो। ओके, कमिंग टू ट्रेड। ट्रेड में गाइस दो चीजें होती हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सिंपल है, एनीथिंग दैट यू डू विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, एनी काइंड ऑफ एरिया का बाइफर्केशन ले लो, दैट इज योर इंटरनल ट्रेड। ठीक है, पर ले लाइक प्रॉपर वे में अगर हम बात करें तो एक कंट्री की करते हैं। ठीक है, हम लोग एक कंट्री से कंसर्न है, हम लोग स्टेट से कंसर्न नहीं है, हम लोग एरिया से कंसर्न नहीं है, वी आर कंसर्न विद द कंट्री। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, any trade within the geographical boundaries is an internal trade. For example, if India is dealing with its own states, that is within the geography of India, that is an internal trade. And once we move out of the geographical boundary of India or in any country, that becomes an external trade. ठीक है, इंटरनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड में तीन चीजें होती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑन्टरपोर्ट। आप कहोगे यार होलसेल रिटेल सुना हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना हुआ है, ये ऑन्टरपोर्ट क्या है? आते हैं अभी। होलसेल में क्या हो रहा होता है, अभी ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी मैं बहुत माइन्यूट बाइफर्केशन दे देती हूँ इसका कि क्या हो रहा है यहाँ पर। होलसेलर एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, वैरायटी बहुत कम है, और वो बल्क में चीजें बेचेगा। ठीक है, ज्यादा लोगे क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा, कम लोगे तो डिस्काउंट कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। रिटेलर इज समवन जिसके पास वैरायटी बहुत है और क्वांटिटी कम है। उसके पास 10 पीस ही मिलेंगे, या आपके पास 12 पीस ही मिलेंगे, 15 पीस ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप होलसेलर को बोलोगे 100 पीस निकाल दो, वो निकाल के दे देगा, रिटेलर नहीं दे सकता। ठीक है, सो द रिटेलर बाइज फ्रॉम होलसेलर, राइट, एंड रिटेलर हैज लॉट ऑफ वैरायटी। रिटेलर के साथ आप ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते हो पैसे को लेके, बट होलसेलर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो प्राइस को लेके। ओके, दैट इज योर होलसेल एंड रिटेल, ये डिस्कस आगे जाके B3 B4 में। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या हो रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑन्टरपोर्ट। जब आप कुछ चीज खुद ना बना के, ठीक है, किसी और कंट्री से ले रहे हो, वो हो जाएगा इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रैशनल है ना, दैट हैज अ प्योर इकोनॉमिक कोनोटेशन, प्योर इकोनॉमिक मीनिंग। इकोनॉमिक्स जो होता है ना गाइस एज अ सब्जेक्ट, वो हम पढ़ते हैं बिकॉज वी हैव स्कार्स रिसोर्सेस। हमारे पास चीजें बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा। तो जितनी भी हमारे पास थोड़ी नेचुरल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज है, उसको हमें ऑप्टिमली जुडिशली यूज करना है, ताकि वो वेस्ट ना हो। और वो वेस्ट होगी तो एज अ कंट्री हमें ही नुकसान है। तो द रैशनल सेज टू डू व्हाट यू आर गुड एट।
ओके, इसको हम ट्रेड थ्योरीज बोलते हैं, अगेन हमें पढ़ना नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द रैशनल कि आपसे जो बनता है ना अच्छा, आप वो बनाओ, जो अच्छा नहीं बनता वो बाहर से ले आओ। Hello, ma'am. यस Hello. यस Can you यस hear me? यस, आई कैन हियर यू। Some students are trying to join in the class. Can you please accept them? I'm not getting any you can see the screen, there is no. That is the problem. Oh, but I like अच्छा यू है, but नहीं, एक minute. I used this ID of goal only. This sorry, BCA only. Let's see BCA program. I don't know how. Yeah, it is not showing that you are the meeting host. I Yeah, think only ऐसा meeting generally hosts have the authority to do that. it does not happen because I always record my screens. अभी actually the time was getting wasted, so I did not check it कि क्यों ऐसा हो रहा है. But see, I have joined it through the BCA program only. Through that यस ID मैम only. मैम यस मैम मैम पहले से आपने हम लोगों को एडमिट किया है, तो फिर आप वही आईडी से ज्वाइन हो। Yeah, exactly. I don't know why it's happening, but I'll sort it out. Don't worry about it. Okay, let me try that. Okay. Mm-hmm. नो नो ऋषिकेश, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर एडमिन अगर लेफ्ट भी हो जाते हैं तो गूगल मीट मीटिंग स्टार्ट रहती है, शुरू रहती है। बट उन्होंने वैसे ही लेफ्ट हो गए होंगे वो शायद। He joined as a student. I think he is not getting the admin role. यस बट हम लोग तो मैम ने एडमिट किया ना हम लोगों को, इसलिए तो एडमिट रोल पे ही थे वो। But she admitted on different credentials, I think. Ma'am, am I audible? I think this is the right ID. Yes, this is the meeting host ID BCAOL RC Delhi 1. Ma'am's microphone is muted, I think. Yeah. Okay, guys. ठीक है. So let me start the recording now. तो गड़बड़ हो गई. किसी को मत. All right, guys. Coming back to what we were discussing. You can see the screen, right? यस मैम। Yeah. So yeah. So no. I'm not out of the meeting. I'm in the meeting. What are you saying? Okay. All right, guys. Guys, switch off, like mute your mics, please, and let me continue. Yeah. So as I was saying the rationale why we do it. Simple है कि जो हमें आता है वो करो, जो नहीं आता वो दूसरे से ले लो. ठीक है. So state theory जो हमारी होती है यही कहती है. Like we are really good in this राइस प्रोडक्शन. ठीक है. तो हम लोग राइस को अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं. एक जस्ट एन एग्जांपल इफ आई गिव, वाइन जो होती है, कहते हैं कि फ्रेंच वाइन बहुत अच्छी है. ठीक है. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो वोल्केनोज पे वहां पर ग्रेप्स उगते हैं वो क्लाइमेट कंडीशंस कहीं और नहीं है.
तो दैट इज वाई दे से कि फ्रेंच वाइन बहुत अच्छी होती है, दे स्पेशलाइज इन इट, ठीक है। सिमिलरली घाना का जो कोको होता है जिससे चॉकलेट बनती है, दैट इज द प्योरेस्ट ऑफ द क्वालिटी, दैट इज वाई दे से कि वहां से लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज बना नहीं रही होती हैं, बट देन इतना अच्छे से और इतने स्पेशलाइज्ड एरिया में नहीं बना पाती, तो इसलिए हम बाहर से चीज खरीदते हैं क्योंकि हमें सस्ती पड़ती है। इतना झंझट क्यों लेना, आप आउटसोर्स करो, बाहर से बनवाओ और लेके आ जाओ। Why does Apple does not make this products in its own country? Why? Because उनको लेबर चीप पड़ती है। पोलैंड में लेबर चीप है, यूरोप की अगर मैं बात करूं, और आपका चाइना में लेबर चीप है, सो दैट इज वाई दे टेक इट फ्रॉम देयर, जहां उनको सस्ती चीज मिलती है तो वो इम्पोर्ट हो जाती है। एंड जिस चीज में हम अच्छे हैं वो हम दबा दब बना के बेच देते हैं, उससे हमें फायदा है, तो दैट इज वाई वी एक्सपोर्ट इट, ओके। एंड ऑन्टरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, पहले हम इंपोर्ट करेंगे, उसको इंपोर्ट करने के बाद अगर तो उसको कुछ ठीक करना हुआ तो ठीक करेंगे, नहीं तो सीधा दूसरी कंट्री को बेच देते हैं। सो व्हेन यू फर्स्ट इंपोर्ट द गुड्स with an intention of exporting those goods, that is your entrepot, okay। इसका मैं एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो डायमंड्स, सूरत में अगर आपको पता हो, गुजरात में डायमंड ट्रेड बहुत होती है गुजरात के अंदर। तो व्हाट हैपेंस इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम सूरत दे गेट द इंपोर्ट द डायमंड्स फ्रॉम अफ्रीका, आगे यहाँ लेके आएंगे एंड देन वो पूरे वर्ल्ड में आगे बेचते हैं, दैट इज एन ऑन्टरपोर्ट ट्रेड। सिंगापुर, हांगकांग, दे आर ऑल्सो बिग, वेरी बिग ऑन्टरपोर्ट ट्रेड सेंटर्स जहाँ पर ऑन्टरपोर्ट हुआ जाता है। अगेन ऑन्टरपोर्ट को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिटेल होलसेल इसी से कंसर्न रहेंगे हम लोग, बट अगेन यू शुड नो कि होता क्या है इसमें। एंड ट्रेड के बाद हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अलग अलग है, ठीक है। देन यू हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस, देन यू हैव वेयर हाउसिंग एंड देन यू हैव एडवर्टाइजिंग। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस कि ठीक है, आपने एक चीज बनाई है, बहुत अमेजिंग चीज बना के रखी हुई है इंडस्ट्री के थ्रू, एंड यू वांट टू ट्रेड नाउ, ओके। So what does trade do? Trade is removing the hindrance of a person. ये जितने भी ट्रेड हो गया या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, they remove certain problem, they remove certain hindrances. That is why they are helpful in facilitating goods and services का exchange, ठीक है। What is a market? Market is an arrangement where there are a buyer and a seller, meaning a market helps in bringing the buyer and the seller together. So the trade removes the hindrance of person. ट्रेड के थ्रू द प्रॉब्लम कि भैया कहाँ जाके बेचना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, ये सब प्रॉब्लम्स ट्रेड हटा देता है, ओके। so trade removes hindrance of person, it brings a person, it brings the buyer and the seller together and they can facilitate that exchange of goods and services, okay। अब ठीक है, आपने दो लोगों को मिला दिया है, दिस बायर एंड सेलर को आपस में मिला दिया है, वो बहुत खुश है, बट द प्रॉब्लम अगेन अराइजेस, हाउ? आपने इतना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बना के रखा है बट द पीपल डोंट नो, दे डोंट नो दैट योर प्रोडक्ट एग्जिस्ट्स, दे आर नॉट अवेयर कि एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो एडवर्टाइजिंग कम्स इनटू प्ले। एडवर्टाइजिंग क्या करेगी? इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। थ्रू एडवर्टाइजिंग you make people know कि sir, I am in the market, I am selling this product at this price, these are the features, हमारा प्रोडक्ट लोगे तो ये फायदे हैं, नहीं लोगे तो ये नुकसान है, ओके। सो एडवर्टाइजिंग के थ्रू द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज गेट्स रिमूव्ड, इट गिव्स यू द यूटिलिटी। सो आपने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है, द एक्टर और एक्ट्रेसेस दे डू सर्टेन थिंग्स थ्रू विच दे कम इन न्यूज, ठीक है। दे डू सर्टेन थिंग्स थ्रू विच दे कम इन न्यूज। वो क्यों करते हैं? ताकि
लोग उनको नोटिस करें, उनकी बज क्रिएट हो, लोग सिर्फ उनके बारे में ही बात करें, उनकी पिक्चर के बारे में ही बात करें। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस वी आर कंज्यूमिंग सो मच डेटा, सो मच इंफॉर्मेशन, कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो हम भूल जाते हैं। एक एड को जब हम छोटे होते होंगे, वी ऑलवेज क्वेश्चन कि एक एड दिखा क्यों डिसाइड करते हैं, व्हाई आर दे शोइंग द सेम एड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, व्हाई? बिकॉज इट इज नेसेसरी। आप लोगों ने वो मूवी देखी है विंटर सोल्जर वाली, कौन सी थी, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन वाली? मैम Civil War. सिविल वॉर। सिविल वॉर, यस सिविल वॉर। Civil War, Civil War. सबको देखिए, वेरी गुड। तो सिविल वॉर में जब विंटर सोल्जर को क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या होता है? गाइस माइक बंद कर दो प्लीज। मैम उनका ब्रेन वॉश करा जाता है ना। मैं बता रही हूँ, वही प्लीज स्विच ऑफ योर माइक एंड टेल। हाँ, तो सिविल वॉर के अंदर एक सीन आता है, अगर किसी ने नहीं देखा तो सुन लो कि होता क्या है। कि जो आपका विंटर सोल्जर है ना, दिस सोल्जर इज देयर, उसकी आईज के ऊपर ऐसा एक गॉग्स रखा होता है, एंड उसके ऊपर फ्लैश न्यू मतलब पिक्चर चल रही होती है, किसी के रीते की पिक्चर 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 चल रही, उसको दिखा रहे हैं, सालों दिखा रहे हैं, बहुत टाइम तक दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है उसी तरीके से, ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में हमारे दिमाग के साथ ऐसा ही हो रहा होता है। अगेन एंड अगेन अगर आपको एक ही चीज की एड दिखेगी, अगेन एंड अगेन एक ही चीज की एड दिखेगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एडवर्टाइजिंग चाहता यही है कि मेरा जो गुड है, मेरा जो प्रोडक्ट है, बस इसी के बारे में सोचे कस्टमर, दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर सोच ना ले बस। ठीक है, सो दैट इज द थिंग दैट एडवर्टाइजिंग डज, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ knowledge. It tells you कि this is the product. No, no. Okay. ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बाद आता है आपका वेयर हाउसिंग। ओके, ये पहले चलो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। आपने प्रोडक्शन सर्विसेज बना दिए, लोगों को बता दिया कि जी मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, सबसे सस्ता मैं बेच रहा हूँ, सबसे अच्छी क्वालिटी मेरी है। पीपल नो नाउ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। डिमांड बहुत आपने क्रिएट कर दी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बट सप्लाई नहीं है। इवेंचुअली क्या होगा, प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा। ए प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, अरे बी खरीद लो, इतना वेट कौन करेगा, अरे भैया जो प्रोडक्ट है दे दो, छोड़ो छोड़ो। वेबसाइट नहीं है, चलो क्लोजअप दे दो। इससे नुकसान किसका है? इसका नुकसान बिजनेस वाले का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट the products that you have created, that you have produced, they need to be available at the right place at the right time. So the transportation comes into play. It removes hindrance of place. जब जहां चाहे आपको सामान चाहिए जी पहुंच जाएगा, जहां मंगवाओगे आ जाएगा। ठीक है, so transportation removes hindrance of place. Then you have warehousing. अब आपने इतना सारा सामान बना के रख लिया है, यू नीड सम स्टोरेज। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो क्या करोगे? सामान सारा खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर दोज गुड्स फॉर द टाइम बीइंग। जब चाहिए निकाला, भेज दिया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सो वेयर हाउसिंग से हमारा टाइम बचता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव होता है। जब सामान चाहिए, आपने एकदम से वेयर हाउस में फोन लगाया, बोला ये इतना सामान, इतने प्रोडक्ट, इतने यूनिट भेज दो, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फटाफट आपने भेज दी। आप देखो कितना आसान हो रहा है। और आप ये चीजें अगर हटा दो, किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, सामान आपके पास बन ही नहीं रहा है, वेयर हाउस में पड़ा ही नहीं हुआ है, ना प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, प्रोड्यूस होके पड़ा हुआ है, लेके कौन जाए, सब चीजों में दिक्कत है। ऊपर से आपके पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, सामान कैसे बनाओगे? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हायर कैसे करोगे? वेयर हाउस कैसे हायर करोगे? एडवर्टाइजिंग कैसे हायर करोगे? कुछ नहीं कर सकते फिर, अगर पैसा नहीं है। ठीक है, सो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ क्रेडिट, ऑफ मनी। जितना पैसा चाहिए बैंक आप जाके ले लो बैंक से। अगेन उसकी भी प्री रिक्विजिट्स होती हैं डेफिनेटली। आपका क्रेडिट स्कोर इतना खराब है तो आपको पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा जी। क्यों? उसको पैसा डुबाना थोड़ी है अपना। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू वी गेट द मनी टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ। ओके, देन कम्स द इंश्योरेंस। इसमें इंश्योरेंस का पॉइंट नहीं है गाइस। इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क।
Like I said, risk is a pervasive function of business. It is inherent feature of business. It is always there in business. We can always reduce the risk, mitigate the risk, but we cannot completely eliminate it. मतलब रिस्क कुछ डिग्री तक कम किया जा सकता है, बिल्कुल ही रिस्क खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. सो इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग अपने रिस्क को एक दूसरों के साथ बांट देते हैं. अब जब इंश्योरेंस पढ़ेंगे तो बताऊंगी कैसे करते हैं सब कुछ, कैसे होता है, क्या होता है. ठीक है. सो दीज आर योर ऑब्जर्वेशन टू ट्रेड. Advertising is removing hindrance of knowledge. Trade is removing hindrance of person. Warehousing is removing hindrance of time. Banking and finance is removing hindrance of credit and finance. Transportation is removing, communication भी कह सकते हो, is removing hindrance of place. Okay. तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो you have to write these points. Hindrances का जो बता रही हूँ ये लिखना जरूरी है. So this was the end of the first unit. Coming to अब अभी इस पॉइंट तक वी आर वेल वर्स्ड विद बिजनेस. हमें पता चल चुका है जी बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें होता क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है. ठीक है. वी नो दिस नाउ. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट स्टेज नाउ. नाउ वी हैव टू टेक अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजन विच इज किस तरीके का बिजनेस खोला जाए. What type of business should we open? Again, the answer to this depends upon a lot of factors. It depends upon, first of all, who is starting the business. Is it a single person? Is it two or more persons? Is it more than 10, more than 50, hundreds? कितने लोग start कर रहे हैं business? Then comes the question, पैसा कितना पड़ा है? Resources कितनी पड़ी है हमारे पास? जगह कितनी है? मैन पावर कितनी है? फिर आता है हमारे पास कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना टाइम हमारे पास है. All these factors decide what kind of business do we start. Okay. And the very basic form of business is sole proprietorship. ये forms of business हम पढ़ रहे हैं and these are the choice of business. ये एक पूरा unit है आपका. But these are the factors that is that we cover. नेचर क्या है बिजनेस का, चलता कैसे है कि नहीं चलता, ऑपरेशन स्केल क्या है, छोटा करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड करना है, कैसे करना है. ठीक है. कैपिटल कितना है, रिस्क कितना ले सकते हैं, टैक्स कितना आएगा, कितने ओनर्स होंगे, कंट्रोल किसके पास है, मैनेजमेंट किसके पास है, ऑल दैट. सो गाइज द बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं हम कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल का मतलब होता है एक, वन पर्सन, द पर्सन दैट इज सिंगल. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. So when one person is the owner of the business, that form of business is known as sole proprietorship. Here, the ownership, management, control, decision-making power, liability, sub sole proprietorship. There is no separation of business and its owner. guys ये line याद रखनी है दिमाग में. There is no separation of business and owner. दोनों एक है, सेपरेशन नहीं है, दोनों एक है. राइट. इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ. इसका मतलब क्या है, 2 मिनट को. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सोल प्रोप्राइटर अकेला करता धरता है एक बिजनेस का. दिस पर्सन विल टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग टू अ बिजनेस. कंट्रोल इसके हाथ में, सारा प्रॉफिट इसका, सारा लॉस इसका. द लायबिलिटी ऑफ दिस पर्सन इज अनलिमिटेड. अगेन अंडरस्टैंड दिस लाइन, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. When I talk about liability, liability का मतलब है कि मैं थर्ड पार्टी को क्या ओन करती हूँ, मुझे कितना पैसा चुकाना है किसी का. दैट इज योर लायबिलिटी. इसका इतना देना है, इसका इतना देना है. लायबल, यू आर लायबल टू पे. इट इज योर ऑब्लिगेशन. You are, as the single owner of the business, are obligated to pay. And why this happens? Because there is no separation between business and owner. When there is no separation between business and owner, the liability is unlimited. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसको रट्टा मार लो.
ये बेसिकली क्या सीन है कि जब हम कंपनी तक पहुंचेंगे यू विल नो कि इन दोनों को आप सेपरेट भी कर सकते हो। एंड व्हेन यू सेपरेट दिस थिंग आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। सिंपल फंडा है ये, हमारी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ओके, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़नी, डोंट वरी, जस्ट नो दिस थिंग। सोल प्रोप्राइटर कौन है? इट इज द सोल ओनर, सोल मैनेजर, सोल डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस। All profits are his, all losses are his own personal goods, his own personal property can be sold off। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, सपोज करो एक सैलून खुला, लुक्स की फ्रेंचाइजी किसी ने ली, ठीक है, ही इज द सोल ओनर ऑफ दैट स्टूडियो, ऑफ दैट स्टोर। उसने बहुत सारा पैसा ले लेके लोगों से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। ओके, अब बिजनेस स्टार्ट करा है उसने, ठीक है, वो लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शुड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस टाइम, ठीक है। एंड समहाउ वो बिजनेस नहीं चला, सारा कुछ लॉस हो गया। अब लॉस इतना हो गया है कि जी पैसे नहीं है लॉसेस चुकाने के लिए, तो व्हाट विल हैपन नाउ, उस सोल प्रोप्राइटर का घर भी बिक सकता है। उस सोल प्रोप्राइटर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर वो घर सोल प्रोप्राइटर के नाम पे है तो वो घर बिक सकता है, उसको हर चीज बिक सकती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है, ये लिमिट ही नहीं है लाइबिलिटी। ओके, सो दैट इज योर सोल प्रोप्राइटर। अब आप बोलोगे, जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये ड्राई क्लीनिंग वाला है एंड दिस इज अ पनवाड़ी, तो दे आर सोल प्रोप्राइटर्स। अब आप बोलोगे एक सलोन है, अगर मैं सलोन की बात करूं तो वहां पर तो और लोग भी होते हैं। अगर मैं आपकी लोकल ग्रोसरी की बात करूं, किनारे की दुकान की बात करूं, वहां पर भी 2-3 लड़के रखे होते हैं उन्होंने। आप कहोगे ये तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये सोल कैसे हो गया? सोल ऐसे हुआ कि डेफिनेटली दे आर एम्प्लॉइज, but the ownership, management, decision making power is with the one person. So that is why it's a sole proprietorship. The control is in one hand, एक हाथ में कंट्रोल है, so that is why that is sole proprietorship। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Yes. या तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक ही इंसान ओन करता है, प्रॉफिट रिस्क सब उसका है, वही मैनेजर है, पैसे भी वही लेके आ रहा है, सब कुछ वही। एंड वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनलाइजेशन, द पर्सनल टच। आप ग्रोसरी पे जाते हो, आप जाके, यूजली हम तो ऐसे ही करते हैं कि इतने पास में ग्रोसरी है तो जाके नमस्ते अंकल और कैसे हो, बढ़िया हो, हाँ बेटा सब बढ़िया है, क्या चाहिए, चलो बताओ क्या चाहिए। सो यू नो दैट पर्सन ऑन अ पर्सनल लेवल, देयर इज दैट पर्सनल टच, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर आ जाता है। वेयर एज हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सनलाइजेशन आ जाती है। यू पर्सनली अटेंड एवरीवन। ओके, अगेन इजिएस्ट फॉर्मेशन है, आपके पास एक रूम है, आपने कोचिंग सेंटर खोल लिया, एक रूम है, आप वहां से अपना के लैपटॉप लेके बैठे, वहां से काम चालू कर दिया। ओके, वेरी इजी टू फॉर्म, वेरी लेस पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है, बस अपना काम खोलो और चालू हो जाए। बेटर कंट्रोल, बिकॉज डिसीजन मेकिंग सारी आपके हाथ में, आप जल्दी डिसीजन लेते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब मन कर रहा है दुकान खोल रहे हो, 11 बजे मन कर रहा है 11 बजे खोल रहे हो, 1 बजे मन कर रहा है 1 बजे खोल रहे हो, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब मन कर रहा है आप कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशंस, टैक्स नहीं लगता है इस पे, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं जाता है। ठीक है, आपका जो टैक्स की जो एक रीजन ये भी है क्यों नहीं जाता, बिकॉज अगेन ओनर एंड मैनेजर, ओनर एंड दिस बिजनेस इज सेम, तो जो टैक्स लायबिलिटी वो अपनी खुद की पे करता है, वही बिजनेस की होती है। तो ठीक है, अलग से कोई कॉर्पोरेट टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जैसे मैंने बताया आपको, सारे प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका। अब सरदर्दी है, बिल्कुल सही बात है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खुद का सामान वामान बिक जाएगा आपका अगर आपने गड़बड़ कर दी तो। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, डेफिनेटली किससे पैसा जाके लोगे, ले नहीं सकते हो। लिमिटेड लाइफ, जब तक आप जिंदा हो बिजनेस जिंदा है। ओके, और एक हद तक ही मैनेज कर सकते हो आप, ये नहीं कि 10 जगह आप फार्मेसी पे जाते हो, एक दवाई की दुकान पे, आई शुड नॉट एडमिट सीरियसली, लेट क्यों आ रहे हैं बच्चे? कल से गाइस आई एम नॉट गोइंग टू, लाइक 10 मिनट तक आई वेट। आज तो ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मेरी गलती थी कि आई जॉइंड इन थ्रू डिफरेंट आईडी, so this late I won't be letting people join। ठीक है,
या फार्मेसी की शॉप पे अगर आप जाते हो, इवन ग्रोसरी पे भी जाते हो, 10 लोग खड़े होते हैं, भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आई मीन सर्टन टाइम्स द पर्सन गेट्स इरिटेटेड, अरे भैया एक इंसान हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो एक हद तक ही आप उस स्केल को मैनेज कर सकते हो बिजनेस, उसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, दैट इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप। सो गाइज, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का, तो आपको उस फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक्सप्लेनेशन देके, एग्जांपल देके, यू हैव टू गिव द बेनिफिट्स, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दोनों लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। HUF पे मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द पार्टनरशिप वंस। ओके गाइस, अब आपने एक चीज देखी कि अभी तक सिर्फ एक इंसान काम कर रहा था। सपोज इफ आई ओपन अ कोचिंग सेंटर, ठीक है, आई टीच लॉ। ओके, नाउ मेरे पास एक रूम है, 10 चेयर रखी हुई है इस रूम में, एक ब्लैक बोर्ड, एंड आई एम टीचिंग, एंड सडनली मेरा काम चल गया। अरे इनसे अच्छे तो कोई लॉ पढ़ाता है, पढ़ा ही नहीं सकता। वाओ, बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो व्हाट आई डू, मेरे दिमाग चला, मैंने कहा अरे लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नाउ नाउ आई, मेरा बिजनेस का नाम चल बन गया है, तो लेट मी डू वन थिंग, let me ask my friends if they are interested to teach different subjects. I call my science के friends, I call my arts के friends कि this is the thing, I am opening this thing, are you interested to come? एक बोलेगा अरे मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ टाइम दे सकता हूँ, I can come at that time, I can do this. एक कहेगा अरे मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे ले लो। एक कहेगा अरे बिल्कुल ठीक है, मेरे से पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं आके सब कुछ मैनेज कर लूंगा, सब कुछ देख लूंगा, डोंट वरी, I'll help you out. So one of the features that comes here is pooling of resources. किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास नॉलेज है, किसी के मतलब something or the other. So when you pool all these resources together, a partnership is formed. Sole proprietor में एक ही इंसान लगा हुआ बेचारा, everything he is doing alone, right? But when you get into partnership, there are 2 or more people at least, okay, and they have the same goal, they have the same vision in mind. There is similarity of goals, and there is what, there is pooling of resources, inherent feature of partnership, different resources को pool कर दिया साथ में, and then you are now running it. अब थोड़ा पैसा भी आ गया, लोग ज्यादा आ गए, now what you'll do, you'll take a better place, एक रूम से आप एक फ्लोर पे चले जाओगे, रेंट पे ले लीजिएगा, थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लोगे, ब्रोशर छपवा लोगे, ठीक है। सो द स्केल, द ऑपरेशंस एक्सपैंड, थोड़ा बढ़ गया, राइट। दिस इज योर पार्टनरशिप। यहाँ पर इसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जज करते हैं। ओके, देयर आर 2 people at least. Whatever you are doing is written on a piece of paper, that is known as the partnership deed. Remember this thing, a partnership can be oral or written, both are okay, but generally written होनी जरूरी है, because you can make the person accountable. ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि जब गोवा का प्लान बनता है तो सारे फ्रेंड्स कहेंगे अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल बनाओ प्रोग्राम, वी आर गोइंग टू गोवा, चलते हैं, चलो चलो चलो। जब टिकट बुक करने की बारी आती है, सब पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना, आप उसको बोलोगे अरे तूने तो ये कहा था, यू सेड दिस, यू सेड दैट, यू कांट मेक देम अकाउंटेबल। वेयरएज अगर आपके पास ये चीज लिखी हो कि इफ आई कैंसिल द प्लान टू गोवा, नोटेड शीट पे साइन के साथ, स्टैम्प के साथ आपने लिखवाया हो, तो आई विल पर्सनली पे 50,000 रुपीज टू ईच फ्रेंड। तो आप इसको कोर्ट में ले जाके पैसे ले सकते हो। तो इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट these documents, these must be written if you want to hold the person accountable, otherwise कोई फायदा नहीं है, ठीक है। So a written पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होगा कि पार्टनर के नाम कौन है, नाम क्या है, इनका कितना कैपिटल इन्होंने डाला है बिजनेस के अंदर, कितना इनका पैसा है, कितना इनकी लायबिलिटी है, कौन कौन प्रॉफिट्स लेगा, कौन कौन लॉसेस लेगा, कौन कौन दोनों चीजें लेगा। ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज पार्टनरशिप में ध्यान देने वाली बात है कि पार्टनरशिप में ना गाइस एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप चल रहा होता है। अब ये एजेंट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज वन पर्सन जिसके बिहाफ पे जो काम किया जाता है वो एजेंट करता है। ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आई विल एम्प्लॉय अ पर्सन, आई विल टेल कि ओके आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी to do this. You go and do it. Okay, I am the principal. That person will call the agent and that person will act on my behalf. जो जो मैंने उसको बोला वो वैसे करेगा, and whatever that person does I can be hold accountable. कल को मैंने उसको बोला कि जाओ रेंट लेके आओ, जो मेरा टेनेंट है उसने रेंट दे दिया और वो एजेंट लेके भाग गया, तो मैं टेनेंट से दोबारा पैसे नहीं ले सकती। वाई? बिकॉज टेनेंट कहेगा सर आपके एजेंट को पैसे दिए थे, आप कैसे पैसे मांग रहे हो मुझसे, मैं तो नहीं दे रहा। ठीक है, सो पार्टनरशिप के अंदर ऑल पार्टनर आर प्रिंसिपल एंड ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स। एग्जाम्पल, मीनिंग क्या हुआ इसका? 4 पार्टनर है फर्म के अंदर, 4 में से एक गया एबीसी लिमिटेड के साथ बिजनेस डील करके आ गया। ठीक है, 4 पार्टनर है, एक गया एंड ही गोज एंड गेट्स इनटू अ डील विद अ फर्म, एंड कल को कोई प्रॉब्लम होती है, इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टनरशिप फर्म। बाय? बिकॉज वो ही एजेंट है और वो भी प्रिंसिपल है। एक का एक्शन सब पे भारी पड़ेगा। इसी वजह से पार्टनरशिप इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है। कल को आपका मूड बदल गया, आपको हो गया बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पैसे दो, मैं जा रहा हूँ। पार्टनरशिप यूं टूटती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी राइज होता है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, वाई? बिकॉज जो दूसरे ने करा वो सबको चुकाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। Okay, so there is a principal agent relationship between all the partners. Again, easy formation है, large resources, pooling of resources, better management। कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई लॉ पढ़ा रहा है, आराम से सब मैनेज हो जाएगा। जब कहते हैं ना जितने हाथ उतने उतनी चीजें बेटर हो जाती हैं करनी, बिकॉज देर आर ऑल हैंड्स ऑन डेक। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यहाँ पर भी नहीं है, सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशंस। ठीक है गाइस, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दिस टॉपिक आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग। तो आप लिख सकते हो इसको ओवरलैप करके। ये लर्निंग हैक्स होते हैं। आई एम श्योर कि आप सब इतने स्मार्ट लोग हो, यू वुड नो दीज थिंग्स, बट लेट मी टेल यू अगेन लाइक सोल प्रोप्राइटर द लायबिलिटी इज लिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड। वही मतलब है इसका कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड ऑफ हो सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी को पे नहीं कर पा रहे हो तो। लिमिटेड लाइफ है ऑफ कोर्स, जब तक पार्टनर्स की बन रही है तब तक बढ़िया है, नहीं बन रही तो चलो अपने रास्ते। रेस कैपिटल करना यहाँ भी डिफिकल्ट है। अभी आप इतने वेल नोन नहीं हो मार्केट में, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं है मार्केट में कि आप पैसे रेस कर पाओ। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, लाइक आई सेड कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत रहते हैं, एंड या दैट इज इट। अच्छा, पार्टनर्स के ना गाइस तरीके भी होते हैं। आप ये जो लेफ्ट कर रहे हो ना मीटिंग, मैंने अभी तक अटेंडेंस ली नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं इट इज देयर प्रॉब्लम, आई हैव नॉट टेकन द अटेंडेंस येट। ओके, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मुझे एक बार बताना है बस। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, क्लासिफाई कैसे करते हो पार्टनर्स को? देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जब आएगा तो यू हैव टू राइट कि ओरल होती है, रिटर्न होती है। टाइप ऑफ पार्टनर्स आएगा तो ये आएगा, आपको सब लिखना है। क्या? एक्टिव पार्टनर हु इज एक्टिवली वर्किंग इन अ फर्म। वो रोज सुबह टाइम पे जाके शॉप खोलेगा, सेंटर खोलेगा, विल सी कि आज क्या क्या शेड्यूल है, कैसे काम करना है, किसको क्या देना है। तो दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, सो इट्स एन एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो सो रहा है,
उसे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये सब सबने एग्री किया है। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है कि आई वॉन्ट बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। मैं पैसे दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम आके बुक्स देख लूंगा, बहुत है। अगेन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स, तभी ऐसा हो रहा है। ओके, सो दिस पर्सन इज स्लीपिंग, इसलिए इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, सो रहा होता है, तो इसलिए इसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ओके, नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर, ये भाई साहब सिर्फ आपका प्रॉफिट्स लेंगे आपसे, आपको अपना नाम दे रहे हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक बिजनेस खोला, ओके, एंड सम हाउ मैंने से अमिताभ बच्चन को ढूंढ के कोई कोई तो सोर्स निकाला, मैंने कहा सर आई एम गोइंग टू यूज योर नेम फॉर माई बिजनेस। आई विल से कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ से कपड़े खरीदे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका प्रॉपर। अमिताभ बच्चन ने कहा ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतना प्रॉफिट दे देना, बिकॉज दैट पर्सन इज वेल नोन, दैट पर्सन इज एडमायर्ड, वो सेलिब्रिटी है, सब जानते हैं, सब उसको पसंद करते हैं। सो ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल विल कम टू नो, अच्छा निधि की फर्म में अमिताभ बच्चन पार्टनर है, अरे मजा आ गया, चलो जी सामान लेते हैं, मतलब अच्छा सामान होगा, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है फर्म का। तो वो नॉमिनल पार्टनर है, वेयर इज ओनली लेंडिंग द नेम, कुछ नहीं कर रहा वो, ना उसने पैसे दिए हमें, ना उसने कुछ दिया, बस नाम